Welcome, Bharat. Welcome to the IKC Community Show. Namaste. How are you doing? I'm good, sir. Absolutely fine. It's a pleasure to meet you again. Thank you, sir. Same here. We hear a lot about you. I personally hear a lot about you from all quarters of the industry. So let's talk about the award that you won recently, the Skill Catalyst Award in the individual category, which you won at the India Kitchen Congress in 2023. Let me just define what was the objective of this award. The Skill Catalyst Award recognizes individuals who have contributed to the development of the skill ecosystem for interiors, furniture, and allied industries. So first, congratulations, Bharat, for winning this award. And let's hear it from you, how you felt when you received it. Thank you very much to the entire fraternity who has selected me as a Catalyst of the Year 2023. And always awards encourage us to do better and better. This awards gives me a lot of encouragement to do what I am doing. मैंने ये काम जो है ऑनेस्टली स्पीकिंग दीपक सर, ये जो भी मैं ट्रेनिंग्स करता हूँ या वर्कशॉप्स करता हूँ, ये मैंने पैसे के लिए नहीं शुरू किया था. I started this just for that was my interest part, and still it's my interest part. So I started this in 2016-17. And still I'm continuing this because I'm enjoying training to the new brains. अवार्ड मिलने से ज्यादा खुशी मेरे को इस इंडस्ट्री के लिए कुछ बेहतर हो रहा है, इसकी ज्यादा खुशी हुई मेरे को कि आप जैसे लोग आकर के इस इंडस्ट्री के लिए कुछ कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में कुछ बेहतर होने जा रहा है, इस इंडस्ट्री को एक रिकग्निशन मिल रहा है, इसकी ज्यादा मेरे को खुशी हुई. मेरे को लगता है कि इस टाइप के फंक्शंस, इस टाइप के सेमिनार्स रेगुलरली होते रहने चाहिए, जिससे इस इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा और ये इंडस्ट्री हमारी ग्रो होती जाएगी, बेहतर होती जाएगी. गवर्नमेंट इज आल्सो हेल्पिंग अस, एंड like you guys who are helping this industry, and definitely I think this industry will grow like anything. ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि आप इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं. वो अलग बात है कि इसमें आपकी अर्निंग्स भी हैं, बट उससे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि ये आपकी कॉलिंग है, कॉलिंग ऑफ द हार्ट. सो मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस अवार्ड को डिसाइड करने के लिए देयर वाज अ ज्यूरी which comprised of 4 or 5 industry leaders from various walks of life, including design, manufacturing, skill development, technology. So बहुत ही एक balanced and unbiased selection के through ये हुआ है. So yes, congratulations to you. आप बहुत ही एक tough screening process के through निकल के आप आए हैं एज द विनर ऑफ दिस अवार्ड. सो इंडीड आई वुड से मैं कहना चाहता हूं कि ये अच्छी अचीवमेंट है आपकी करियर के लिए. बट भरत, आप उस टाइम पे यू आर नॉट वेल, इफ आई रिमेम्बर. यस सर. आपको तकलीफ थी, आप नहीं आ पाए थे. क्या हुआ सर? आई सफर्ड विद द हार्ट अटैक. Award day, I was admitted in the hospital and I was going through the surgery. Sorry to hear that. That's the reason I could not attend that session, that event. मुझे याद है उस टाइम पे जब हमें पता चला कि आप अनवेल हैं, तो हमने फिर ये हमें लगा कि who should receive the award on your behalf, आपके लिए कौन रिसीव करे.
तो वहीं पे जय, जो आपके बहुत ही एक क्लोज मित्र हैं, गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, तो उन्होंने फटाफट एक बहुत ही अच्छी स्पीच तैयार करी आपके बिहाफ पे। एंड जिस पैशन के साथ एंड जिस लव एंड अफेक्शन के साथ उसने वो स्पीच स्टेज पे बोली उन्होंने, वो भी एक बहुत ही, दैट वाज अमेजिंग। So I think Jay has really proven that he is a very good friend of yours. Yes, we are colleagues together since last 1 decade, you can say. Oh, wonderful, wonderful, wonderful. So how are you feeling now? I am absolutely fine, sir. Hmm. भी एकदम better feel कर रहा हूँ, and now I am back on track. So I started working as normal, absolutely normal. Wonderful, wonderful. You have to take care of your health. Yes, sir. Thank you, sir. ये टाइम नहीं, आपको बहुत कुछ करना है। नहीं, अभी कर रहा हूँ सर, बिल्कुल बहुत डिसिप्लिन लाइफ अभी चालू कर दिया सर। तो बताइए, जो आपका जो ट्रेनिंग का जो काम है, योर करियर ऑफ ट्रेनिंग, उसमें आप क्या कर रहे हैं? आपने अभी एट दिस मोमेंट व्हाट हैव यू अचीव्ड, व्हाट हैव यू क्रिएटेड? सर अचीवमेंट में तो मैं बोलूंगा मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था जब मेरे को इंडस्ट्री फ्रेटर्निटी से स्किल कैटलिस्ट का अवार्ड मिला। दैट वाज द लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर मी। इसके पहले सर मैं अगर बोलूं तो आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री बाय चांस, यू कैन से। और मैं यहाँ पर जो भी काम कर रहा हूँ वो इंटीरियर डिजाइनर्स को लेकर के साथ में काम कर रहा हूँ, बिकॉज फर्नीचर मैटर्स अलॉट टू द इंटीरियर डिजाइनर्स। अगर मैं इंटीरियर डिजाइनर के जॉब में से अगर फर्नीचर निकाल दूंगा, सो फर्नीचर अगर निकल जाता है तो इंटीरियर डिजाइनर के पास करने के लिए कुछ बहुत कम स्कोप रह जाता है। सो मैं जो भी काम करता हूँ वो इंटीरियर डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनर्स के पर्सपेक्टिव से काम करता हूँ और उनको ट्रेन करने का काम करता हूँ। बिकॉज अगर मैं बोलूं कि इंटीरियर डिजाइनिंग में 90% 80% स्कोप जो है वो फर्नीचर प्ले करता है, रोल प्ले करता है। तो फर्नीचर अगर नहीं आता है इंटीरियर डिजाइनर को तो ही विल बी हैंडीक्राफ्ट, ही कैन नॉट डू एनी इंटीरियर डिजाइनिंग। तो फर्नीचर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए इंटीरियर डिजाइनर्स को साथ में लेकर के मैं, और उसमें भी मैं जो फ्रेश ब्रेन्स हैं उनको लेकर के मैं ट्रेनिंग करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात दीपक सर यहाँ पर यह है कि मैं पिछले 7-8 साल से जो ये काम कर रहा हूँ उसमें मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी कि आज भी जो इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्सेज हैं, जो इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं, दे आर स्टिल ओल्ड स्कूल्स। दे आर नॉट टीचिंग मॉड्यूलर फर्नीचर और फर्नीचर डिजाइनिंग। अभी अगर देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में फर्नीचर इंडस्ट्री कंप्लीटली चेंज हो गई है। एक टाइम हुआ करता था जब ग्रैंड पेरेंट ने फर्नीचर बनाया तो उसको सारे 2-3 जनरेशन तक उस फर्नीचर को चलाते थे। अभी ट्रेंड चेंज हो गया। अभी एवरी 5 years और 7 years पीपल चेंज देयर फर्नीचर। तो डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ गई है और people are traveling abroad and people are liking latest designs and latest furniture. So per capital फर्नीचर एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो फर्नीचर का डिमांड तो बढ़ा है, लेकिन उस स्पीड से, जिस स्पीड से फर्नीचर की डिमांड बढ़ी है उस स्पीड से हमारे पास में स्किल्ड लोग नहीं है। And yeah, I realized this when I was working with a organization, Future Group. So there I realized कि यार अगर if I develop skills of my designers, तो definitely they can perform well. तो मैंने उनको ट्रेनिंग शुरू किया एंड रिजल्ट्स अपने आप आने लगे। तो क्या जब रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस, सॉरी टू इंटरप्ट, आप फ्यूचर ग्रुप में जब थे जी, तो वहां पे आपको डिजाइनर्स की रिक्वायरमेंट कहाँ थी? फ्यूचर ग्रुप में विच बिजनेस ऑफ फ्यूचर ग्रुप? सर फ्यूचर ग्रुप वाज इनटू design and build business. They used to design full home, full interior of their customers, and they supplied furniture, kitchens, wardrobes, everything. So for They had a kitchen, brand? yes sir, they have a lot of stores, retail stores in the name of Hometown.
तो Right. वहां पर हमको वी रेगुलरली रिक्वायर्ड डिजाइनर्स हु कैन डिजाइन गुड किचन, हु कैन डिजाइन गुड वार्डरोब्स। तो वहां से मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को अगर इन जो भी नए डिजाइनर्स आ रहे हैं उनको अगर मैंने किचन के ऊपर और वार्डरोब के ऊपर उनको ट्रेनिंग किया, बिकॉज जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो भी इंटीरियर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर नॉट टीचिंग लेटेस्ट डिजाइन्स और लेटेस्ट ट्रेंड। वो आज भी पुराना जो करिकुलम है आज से 15-20 साल पहले का वही पढ़ा रहे हैं। सो देयरफॉर आई डिसाइडेड कि नहीं, मेरे को इनको नया जो ट्रेंड है, नए लेटेस्ट जो फर्नीचर के डिजाइन से या लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या लेटेस्ट हार्डवेयर हैं, लेटेस्ट फिनिशर्स हैं, वो इनको सिखाना चाहिए। तो देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग देम, और उनको जब मैं ट्रेनिंग करता था तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट आना चालू हो गए, सेल्स के नंबर्स आना चालू हो गए, एंड वी स्टार्टेड डूइंग प्रीटी वेल। तो वहां से मैंने अपना ट्रेनिंग का जो करियर कह सकते हो वहां से शुरू किया मैंने। आपने जो मेंशन करा फ्यूचर ग्रुप्स होम टाउन, तो वहां पे आप क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग इन होम टाउन? यू वर वर्किंग इन होम टाउन? Yeah, I was working with Future Group in hometown vertical, and I was handling entire West region except Mumbai. So I was category head for entire West. तो जिसमें हमारे पास में मेरे अंडर में लगभग 9 स्टोर आते थे, जिसमें सूरत था, अहमदाबाद था, इंदौर, नागपुर, औरंगाबाद, पुणे के 4 स्टोर्स। तो ऐसे सारे 9 स्टोर्स मिला करके मेरे पास में वेस्टर्न रीजन मैं हैंडल करता था। और हर बार एक ही समस्या सबसे बड़ी जो सामने आती थी कि वी आर नॉट गेटिंग गुड डिजाइनर्स। आज भी अगर आप इंडस्ट्री में लोगों से बात करेंगे दीपक सर, तो मेरे को लगता है कि हर जो भी किचन मैन्युफैक्चरर है या किचन सेलर है, वो एक ही सबसे बड़ी समस्या लेकर के आपके सामने आएगा। वो यही बोलेगा कि दीपक सर, मेरे पास में ना अच्छे स्किल डिजाइनर्स नहीं है, अच्छे स्किल सुपरवाइजर्स नहीं है, वी डोंट हैव स्किल मैन पावर। तो ये इस समस्या का एक ही समाधान मेरे को लगता है कि अगर हम लोगों को स्किल करना शुरू करें, हम लोगों को ट्रेन करना शुरू करें, तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। और जो हमारी कुछ समस्याएं आती हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाता है, डिजाइन गलत हो जाते हैं, डिजाइन सही नहीं होता है तो बीओक्यू सही नहीं बनता है, बीओक्यू सही नहीं बनता है तो फैक्ट्री गड़बड़ करती है, फैक्ट्री गलत बनाएगी तो एंड जो प्रोडक्ट है वो भी गलत जाएगा। ये जो समस्या का, हर एक समस्या का अगर आप रूट कॉज देखेंगे तो दैट इज वी डोंट हैव स्किल्ड मैन पावर। तो इफ वी कैन ग्रूम देम, इफ वी कैन ट्रेन देम, तो हमारा बहुत सारा समस्या जो है वो यहाँ पे हल हो सकती है। Let me just go back still once more to your hometown days. Yes. यहाँ पे when you were working as the category head and आपको ये लगा कि डिजाइनर्स सुटेबली डिजाइन नहीं कर पा रहे, तो उस कारण क्या सेल्स आपकी इफेक्ट हो रही थी? बिल्कुल होती है सर। अगर आपके पास में डिजाइनर स्किल्ड नहीं है, क्योंकि ये देखिए, ये जो भी जॉब है वो टेक्नो कमर्शियल जॉब है। अगर एक बंदा जो है वो टेक्निकली साउंड नहीं है तो डिजाइन में गड़बड़ी करेगा। अगर वो सिर्फ कमर्शियली साउंड है तो बेच तो देगा वो माल वो, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आएंगे। इसलिए मैं इस जो रोल है, इस रोल को मैं बोलता हूँ टेक्नो कमर्शियली साउंड होना बहुत जरूरी है बंदे को। तो अगर वो टेक्नो कमर्शियली साउंड है, टेक्निकली भी साउंड है और कमर्शियली भी साउंड है, तो डेफिनेटली परफॉर्म होगा। कई बार कस्टमर अगर आपके पास आता है, कस्टमर एक किचन बनवाने आता है, बहुत सारे सवाल लेकर के सामने आएगा। उसका बजट कुछ होगा, उसके दिमाग में कुछ डिजाइन भी होगा, हो सकता है वो बजट और डिजाइन दोनों मैच ना करें। तो एक अच्छे किचन डिजाइनर का जॉब वही होता है कि कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है और जो उसके दिमाग में डिजाइन है उसको मैच करें। ये मैच करने का काम तभी हो पाएगा जब वो स्किल्ड होगा, जब वो प्रोडक्ट नॉलेज उसको अच्छा होगा, उसका डिजाइन का नॉलेज अच्छा होगा, तभी वो इन दोनों को मैच कर पाएगा। तो अगर ये नहीं कर पाते हैं तो सेल नहीं होता है, सेल्स का प्रॉब्लम हमेशा आएगा। सो इसके लिए ट्रेनिंग और प्रोडक्ट नॉलेज देना आपके डिजाइनर्स को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपने होम टाउन में कितने टाइम ये ट्रेनिंग करी? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको फिर रिजल्ट्स क्या दिखाई दिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्या रिजल्ट्स आपको दिखाई दिए आपकी ट्रेनिंग के? सर पहले जब होता था
हमारे पास कस्टमर्स आते थे जब व्हेन आई वाज इन होम टाउन, तो कस्टमर आता था बहुत सारे। नॉर्मल केस में हमेशा ऐसे ही होता है कि हमारे पास कस्टमर आता है बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स लेकर के, बहुत सारा एक सर्टन बजट लेकर के आता है, और हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और अगर मेरे डिजाइनर को नॉलेज नहीं होता था, तो वो कस्टमर हम लूज कर देते थे, हम वो कस्टमर छूट जाता था हमारे पास से। तो कस्टमर स्टार्टेड लुकिंग अदर ऑप्शंस, और ऐसे करके हमारा सेल, बहुत सारा हमारा कस्टमर हम लूज कर देते थे। तो हमने जब डिजाइनर्स को ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया, तो वी स्टार्टेड ट्रेनिंग ऑन प्रोडक्ट फर्स्ट, कि हम उनको हिंजेस क्या होता है, या ड्रॉ सिस्टम्स क्या होते हैं, या फिनिशेस क्या होते हैं, या बेस मटेरियल क्या होता है, वहां से हम शुरू करते हैं। क्योंकि कस्टमर बहुत सारे सवाल इस टाइप के भी पूछता है कि मैं अगर कॉर्नर पे ले रहा हूं तो ये फिलर क्यों आ रहा है, या इसमें यही हिंज क्यों लग रहा है। और अगर उसका गोलमोल जवाब मिलेगा तो कस्टमर के मन में डाउट आ जाता है। तो यहाँ से शुरुआत होती थी। तो इसलिए हमने जब ट्रेनिंग करना शुरू किया हमारे डिजाइनर्स को, और डिजाइनर्स ने कॉन्फिडेंटली, जब कस्टमर कुछ सवाल पूछता था तो डिजाइनर्स ने जब कॉन्फिडेंटली उसका जवाब देना शुरू कर दिया, तो कस्टमर को हमारे डिजाइनर के ऊपर एक विश्वास जागना शुरू हुआ। कस्टमर ने बहुत कॉन्फिडेंटली उस चीज को लेना शुरू कर दिया, और डिजाइनर्स ने भी उस कस्टमर के सवाल को अवॉइड करने के बजाय उसको आंसर करना बेटर समझा। जिसको हम बोलते हैं ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर जब आता है किचन डिजाइन कराने के लिए या वार्डरोब डिजाइनिंग कराने के लिए, तो बहुत सारे सवाल या बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लेके आता है। अगर आप उस ऑब्जेक्शंस को, उन क्वेश्चंस को प्रॉपरली हैंडल करेंगे, उनके सेटिस्फैक्टरी जवाब देंगे कस्टमर को, तो फिर कस्टमर कहीं नहीं जाएगा। तो हमने उसको सॉल्यूशन को हमने निकाला, और देन डेफिनेटली हमको नंबर्स आना चालू हो गए। जो भी हम लोग के टारगेट्स होते थे, उन टारगेट्स को हमने अचीव करना चालू कर दिया। So, आपने होम टाउन में जब आप थे, वो कौन सा टाइम था? विच ईयर वाज दैट? सर ये था टाइम 2010 से लेकर के तो 2015 तक का। आप होम टाउन में थे, बताइए। 2015 के बाद सर आई ज्वाइन जॉनसन नोबिलिया। तो नोबिलिया इंपोर्ट करते हैं जॉनसन आज भी, तो आई वर्क फॉर देम। जॉनसन नोबिलिया में मैंने अगेन आई वाज हैंडलिंग वेस्टर्न रीजन, तो पूना, औरंगाबाद, ये सब कोल्हापुर, ये सब एरिया मेरे पास में था। एंड वहां पर मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर मैं बोलूं, तो मैं अपने बॉसेस को कन्विंस कर पाया कि वी शुड सेल किचन इन द नेम ऑफ नोबिलिया, नॉट इन द नेम ऑफ जॉनसन। ओके। तो नोबिलिया इज अ बिगर ब्रांड देन जॉनसन इन किचन मैनर। इन अगर मॉड्यूलर किचन की मैं बात करूं, तो डेफिनेटली नोबिलिया इज अ बिगर ब्रांड देन जॉनसन। तो मैंने अपने बॉसेस को कन्विंस करने की पूरी कोशिश किया, और मैं कन्विंस कर पाया कि हमको किचन जॉनसन के नाम से ना बेच करके हमको नोबिलिया के नाम से बेचना चाहिए। तो वो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, आई वुड से। उसके बाद में देन आई जॉइंड बाउफॉर्मेट, अगेन इट्स अ जर्मन ब्रांड। तो उधर भी मैंने लगभग 2 साल काम किया बाउफॉर्मेट में, अगेन वेस्टर्न रीजन आई वाज हैंडलिंग। सो आई डेवलप डीलर इन गोवा, कोल्हापुर, राजकोट, अहमदाबाद, पुणे, इन सब मार्केट में मैंने काम किया, और वहां पर भी मैंने काफी सारे डीलर्स इन ब्रांड्स के लिए डेवलप किए। In fact, I think Nobilia is the world's largest वर्ल्ड्स manufacturer. लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, करेक्ट करेक्ट। And then 2018, I was working with Bauformat. Again, that was a turning point for me. मैंने कुछ डिजाइनर्स हायर किए, और उनको ट्रेनिंग करना शुरू किया। तो वन ऑफ माय डिजाइनर रिक्वेस्टेड मी कि सर, you are a very good trainer, why don't you go and train students in my institute? तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ट्रेनिंग टू इंटीरियर डिजाइनर्स। तो मैं आया, एक इंस्टीट्यूट में गया, वहां पर उन्होंने मेरे से पूछा कि यार आप किचन क्या पढ़ाओगे। तो मैंने कहा किचन में तो बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए। सो बोले नहीं, किचन तो हम लोग भी पढ़ाते हैं। मैंने उनसे कुछ बेसिक जनरल सवाल पूछे कि हिंजेस के कितने टाइप होते हैं, या ब्लाइंड कॉर्नर का साइज क्या होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल। तो दे वर आंसरलेस। तो उनको भी लगा कि आपने नहीं, आपने उनसे पूछा? मैंने उल्टा उनसे पूछा। अच्छा। तो
उनको लगा कि नहीं इधर बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, तो वहां पर से मैंने अपना स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन और स्टूडेंट के साथ में इंस्टीट्यूट्स में जाकर के पढ़ाना वहां से शुरू किया मैंने। तो 2018 में आकर के दीपक सर मेरे को ऐसा लगा कि आई कैन बी अ गुड ट्रेनर एंड आई कैन मेक ट्रेनिंग एज माय प्रोफेशन। तो मैंने फिर सेल्स का जॉब छोड़ा एंड देन 3 महीने का मैंने दीपक सर ब्रेक लिया। इस 3 महीने में मैंने बहुत ट्रेवल किया। मैं दिल्ली आया, बहुत सारे अपने इंडस्ट्री के लोगों से मिला, मैं बेंगलोर गया, वहां पर कुछ लोगों से मिला, देन अहमदाबाद गया, वहां पे कुछ अपने इंडस्ट्री के लोगों से मिला, और ये सब लोगों से मिल करके मैंने ये पूरा का पूरा करिकुलम बनाया 3 महीने में। एंड 2019 जनवरी से मैंने अपना एक खुद का इंस्टीट्यूट चालू किया, जिसमें हम अभी फिलहाल तो सारे जो इंटीरियर डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम ट्रेनिंग करते हैं ऑन मॉड्यूलर फर्नीचर पार्ट। स्टार्टेड विद मॉड्यूलर किचन। मैंने शुरुआत मॉड्यूलर किचन से शुरू की थी कि वहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ किचन के बारे में बात करते थे, लेकिन बाद में जब जैसे जैसे हमने और इस को स्कोप देखा कि ऐसा लगा हम लोग को कि नहीं इसमें और ज्यादा हमको करना चाहिए, तो नाउ वी हैव 6 months कोर्स ओनली ऑन मॉड्यूलर फर्नीचर डिजाइनिंग। तो 6 महीने का कोर्स है हमारा अभी, जिसमें हम मॉड्यूलर फर्नीचर के ऊपर ही डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट किचन, वी आर टॉकिंग अबाउट पैनल बेस्ड फर्नीचर। तो सो इस व्हाट इज 6 द महीने नेम ऑफ, क्या है आपके इंस्टीट्यूट का नाम? हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है टाइम्स एंड ट्रेंड्स एकेडमी। डेक्कन में है, पुणे में, इट्स इन हार्ट ऑफ द सिटी। तो अभी हमारे पास में लगभग हर साल 2 बैच हम निकालते हैं, जिसमें ऑन एंड एवरेज 25-30 बच्चे एक बैच में हमारे पास होते हैं। तो ये 6 महीने का होता है प्रोग्राम? जी, ये 6 महीने का प्रोग्राम होता है। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं मॉड्यूलर क्या है, यहाँ से मार्केट कितना बड़ा है। वी इनकरेज देम टू मेक देयर करियर इन मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री बाय गिविंग देम सम नंबर्स कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और क्या स्कोप है इस इंडस्ट्री में करने के लिए। वहां से हम शुरुआत करते हैं, फिर हम इनको मार्केट का साइज बताते हैं कितना बड़ा मार्केट है एंड हाउ यू कैन मेक योर करियर इन मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री। यहाँ से हम उनको धीरे धीरे फिर हम प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाते हैं, फिनिशेस के ऊपर लेके जाते हैं, फिर हम हार्डवेयर के ऊपर उनको लेके जाते हैं, फिर हम अप्लायंसेस के ऊपर 3 से 4 दिन हम सिर्फ उनको बिल्ट इन अप्लायंसेस पढ़ाते हैं। उसके बाद में हम उनको एक्सेसरीज पढ़ाते हैं। हर ब्रांड के ऊपर हम फोकस करते हैं, वी आर नॉट एंडोर्सिंग एनी वन ब्रांड। तो हम हर ब्रांड, जितने भी हार्डवेयर ब्रांड्स हैं, सारे हार्डवेयर ब्रांड्स हम उनको पढ़ाते हैं। उसके बाद में हम डिजाइनिंग पे लेके जाते हैं। सॉफ्टवेयर हम कुछ सॉफ्टवेयर के साथ में हमारा रिलेशन अच्छे हैं, तो कुछ हम सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं। एंड देन लास्ट में हमारा जो होता है सर, वो हम सॉफ्ट स्किल्स भी पढ़ाते हैं इनको। सॉफ्ट स्किल्स से मतलब हाउ टू डू सेल्स, हाउ टू सेल योर डिजाइन्स, हाउ टू सेल योर कॉन्सेप्ट्स, हाउ टू सेल योर आइडियाज, वो हम करते हैं। देन हमारे पास में कुछ और चैप्टर्स हैं जिसमें हम कुछ कंज्यूमर साइकोलॉजी कैसे होता है, अगर कोई इंटीरियर डिजाइनिंग कराने आया है, फर्नीचर बनवाने आया है, तो उसका साइकोलॉजी कैसे होगा, कैसे काम करेगा, उसके ऊपर भी हमारे पास में कुछ लेक्चर्स हैं और वो हम करवाते हैं। सेल्स हम ट्रेनिंग करते हैं, प्लस हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे होना चाहिए, जो सबसे पहले हमने आप डिस्कस कर रहे थे हम, कि जब कस्टमर इंटीरियर डिजाइनिंग कराने आता है या फर्नीचर बनवाने आता है या किचन बनवाने आता है, तो ही विल कम विथ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शंस। तो वो उन ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना, वो भी हमारे पास में एक चैप्टर है हमारे पूरे ट्रेनिंग में। देन वी हैव अ वन चैप्टर ऑन कम्युनिकेशन, ये हाउ टू कम्युनिकेट विथ योर क्लाइंट, कैसे बात करना, किस मूवमेंट पे आप उससे चार्जेस मांगना। डिफरेंट चार्जेस जो होते हैं हमारे, डिजाइनिंग चार्जेस हो गए या साइड विजिट चार्जेस हो गए या 10% एडवांस हो गया या 60% एडवांस हो गया, वो किस पॉइंट पे आपको मांगना है, उसका कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी हम लोग उनको ट्रेन करते हैं। तो इसको अगर मैं बोलूं तो 360 डिग्री ट्रेनिंग हमारा होता है। सो व्हाट इज मॉड्यूलर से लेकर के, तो हाउ टू सेल योर कॉन्सेप्ट्स, हाउ टू सेल योर आइडियाज, हाउ टू क्लोज द डील्स, वो सब हम हमारे पूरे इस 6 महीने के कोर्स में हम पढ़ाते हैं।
और आफ्टर हैविंग 6 months कोर्स दे आर बाउंड टू डू इंटर्नशिप। तो 3 महीने का इंटर्नशिप भी हम उनको बोलते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो टोटल 9 महीने का कोर्स हमारा हो जाता है सर। तो 3 महीना बच्चा जो है वो इंटर्नशिप भी करता है। करंटली वी हैव टाई अप इन पुणे मार्केट। तो पुणे मार्केट में हमारे कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं पुणे के, और कुछ मल्टीनेशनल ब्रांड्स भी हैं जिनके यहाँ पर हमारे बच्चे जाके इंटर्नशिप करते हैं, और वहाँ पे वो दे विल गेट प्रैक्टिकल नॉलेज। कौन से ब्रांड्स हैं ये? कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? या व्हाई नॉट सर। पुणे बेस्ड अगर मैं ब्रांड बोलूं तो शिरके किचन्स इज वन ऑफ देम, देन स्पेसवुड है, उसके बाद में शिरके। शिरके, देन लीव स्पेस में हमारे कुछ बच्चे काम कर रहे हैं। हमारे किचन डेकोर करके एक अच्छा ब्रांड है पुणे का, बहुत बढ़िया ब्रांड है, तो उनके यहाँ पे भी हमारे कुछ बच्चे काम करते हैं। एलिगांते करके है, होमले में हमारे कुछ बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। तो ऐसे अलग अलग ब्रांड्स में हमारे बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। मल्टीनेशनल ब्रांड्स की बात करूं तो हैकर में हमारे अभी कुछ 2 बच्चे हमारे हैकर में काम कर रहे हैं। सो मल्टीनेशनल ब्रांड्स में भी नोल्टे में हमारे एक मेरा भी रिसेंटली एक बच्चा नोल्टे में भी काम कर रहा है। सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन डिफरेंट ब्रांड्स। अमेजिंग, अमेजिंग। आपकी नॉलेज में कोई और भी कंट्री में इंस्टीट्यूट है या आप ही का है ये इंस्टीट्यूट इस तरह? सर मेरे नॉलेज में जिस तरीके से 6 महीने का कोर्स और 3 महीने का कंपलसरी इंटर्नशिप, और जो इंटर्नशिप है वो पेड इंटर्नशिप है हमारा। तो जो किचन मैन्युफैक्चरर और सेलर है, ही इज बाउंड टू गिव सम स्टाइपेंड टू द स्टूडेंट, ताकि उसका भी इंटरेस्ट बना रहे आने के लिए। तो इसमें मेरे को नहीं लगता सर कि और कोई इंस्टीट्यूट है जो इस टाइप का काम कर रही है। मेरे नॉलेज में तो नहीं है सर, आप अगर आपको मालूम होगा तो प्लीज लेट मी नो। So here you are a faculty or you are part of the management? किस तरह से आप associated हैं? I am the main faculty. I am the main faculty, but we have other faculties also, because sometimes students come to us and he is not aware about the other softwares. तो सॉफ्टवेयर के लिए हमारे पास में बहुत सारे फैकल्टीज हैं। सॉफ्ट स्किल्स के लिए भी हम फैकल्टीज बुलाते हैं, जो जैसे मैंने बोला कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है, या सेल्स के लिए है, या कंज्यूमर साइकोलॉजी के लिए है। तो इन सब के लिए भी हमारे पास में फैकल्टीज हम बुलाते हैं। और यस, आई एम डेवलपिंग सम फैकल्टीज अंडर मी, जो बच्चों को थोड़ा सा और अपस्किल्स कर सके, पढ़ा सके। तो कुछ हम फैकल्टीज डेवलप भी कर रहे हैं। बट यस, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे को ये लग रही है कि आपने पहले ऑलमोस्ट आई वुड से 2010 से 2018 तक आप प्रैक्टिकल साइड में रहे, इंडस्ट्री में रहे, उसके बाद आप एकेडमिक साइड में आए हैं। सो आपकी जो जो टीचिंग का जो जी ये जी जी एक करियर पाथ है, इट इज बैक्ड बाय डीप प्रैक्टिकल रियल लाइफ इंडस्ट्री नॉलेज। ये कॉम्बिनेशन रेयर है, मतलब सीधे ही लोग आ जाते हैं एकेडमिक्स में। हो सकता है कि थोड़ा बहुत उनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, लेकिन इतनी डीप नॉलेज रेयर ही होती है इंडस्ट्री की। आपने सेल्स भी करी है, आपने डिजाइनिंग भी करी है, और इतने लंबे टाइम तक टॉप ब्रांड्स के साथ आपने काम करा है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग साइड ऑफ योर करियर पाथ। दीपक सर, earlier to 2010 I हाँ, was associated with Spacefood। ओके, तो वंडरफुल। हाँ जी, उनके एक और साथ वन मोर बिग ब्रांड। जी। तो आई वाज वर्किंग फॉर स्पेसफुड बिफोर 2010। तो और उसके पहले मैंने अपना बिजनेस भी किया है। तो since you can say since last 25 years I'm into the industry। तो आपकी कामयाबी में थोड़ा थोड़ा श्रेय तो इन सब ब्रांड्स को भी जाएगा, सारे ब्रांड्स का है सर, सारे ब्रांड्स का है ना? जी। आपने स्पेस फूड हुआ, होम टाउन हुआ, नोबिलिया, जॉनसन हुआ जॉनसन हुआ, फिर जी, आपका एलिगांते हुआ, आपने लिव स्पेस, होम लेन, इन सब में सारे आप सारे। अमेजिंग। इसलिए बोला ना सर मैं कि जब मैं करिकुलम बना रहा था सर, तो मैंने इंडस्ट्री के जितने स्टालवर्ड्स हैं सबसे मिला सर मैं, और सबको मैंने अपना जब ये आइडिया दिया, तो सबने मेरे को ब्लाइंडली ब्लाइंडली आई वुड से ब्लाइंडली सपोर्ट किया सब।
मेरे को, तब जाकर के डेवलप हुआ। मेरे अकेले की मेहनत नहीं है सर, इसका श्रेय मैं सबको देना चाहता हूँ, जितने भी इंडस्ट्री में लोग हैं। गोपाल द्विवेदी ने जी बुक लिखी है एक, मॉड्यूलर किचन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग गाइड करिकुलम के नाम पे। व्हाट डू यस। यू थिंक ऑफ दैट बुक? आपने उसको भी यूज करा है या उसको वहां से भी आपने कुछ नॉलेज प्राप्त करी है? जी जी, मैं उस बुक को तो मैं जितने भी किचन डिजाइनर्स हैं या जो लोग मॉड्यूलर किचन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं उनको उस बुक को रेफर करने के लिए सलाह देता हूं, उनको एडवाइस करता हूं कि वो बुक एक बार जरूर पढ़ें और उस पर अमल करें। हम्म। बहुत ही अच्छी बुक है। और हर किचन डिजाइनर ने, जो भी किचन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उस बुक को जरूर रेफर करना चाहिए और एक बार पढ़ना चाहिए। तो भरत, अब ये बताइए, देखिए आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कमर्शियल साइड आल्सो यू हैव। डू यू हैव एनी सर्टिफिकेशन? Yes, sir. I am planning and thinking on that. So definitely, I would like to take some courses. अगर मेरे को बाहर भी जाना पड़ेगा उसके लिए, तो I am ready. I am planning to visit Germany or Italy once. I've been to Nobilia once, but not for training purpose. I just been to Nobilia just to visit their factory. तो वो देख करके आया हूँ मैं, बट ट्रेनिंग के लिए डेफिनेटली आई एम ट्राइंग टू विजिट जर्मनी और इटली, वेयर आई कैन गेट more knowledge and I can download that knowledge to my students. Recently, I have taken one course of skill development. NSDC से मैंने एक अभी ट्रेन द ट्रेनर का भी 3 दिन का कोर्स मैं करके आया हूँ। कौन सा? एंड NSDC का सर है, कोर्स है जिसमें ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है उनका। ट्रेन सो द आई ट्रेनर। या NSDC थ्रू FFSC, फर्नीचर फिटिंग स्किल काउंसिल के थ्रू मैं वहां गया था, और वहां पर 3 दिन का उनका एक ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होता है, वो मैं अटेंड करके आया हूँ। उनका पर्पस होता है ट्रेन द ट्रेनर। तो अभी जैसे मैं हूँ फर्नीचर इंडस्ट्री में, तो मेरे जैसे और भी सारे ट्रेनर्स लगेंगे, तो मैं अब जो ट्रेनिंग करता हूँ उसको मैं और बहुत सारे ट्रेनर्स में जनरेट कर पाऊँ, और बहुत सारे ट्रेनर्स को मैं ट्रेनिंग कर पाऊँ, ताकि वो और उनके नीचे और डाउनलोड करे नीचे तक। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास में डेट्स नहीं होती हैं, और कुछ इंस्टीट्यूट मेरे को बुलाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए कि सर आप आइए हमारे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करिए। अब मेरे पास डेट्स नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैंने किसी और को ट्रेन किया है, तो वो जाकर के वहां पर ट्रेनिंग ले सकता है। तो वो प्रोग्राम है, इसको उन लोग ने बोलते हैं ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। तो वो मैंने अभी किया हुआ है, बट यस, आई एम प्लानिंग टू विजिट इटली और जर्मनी, वेयर आई कैन हैव 7-10 days training and I can download that knowledge to my students. अगर आप ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के थ्रू और लोगों को अपने जैसे ट्रेनिंग स्किल्ड कर पा रहे हैं, तो फिर तो ये बहुत ही इंडस्ट्री के लिए और भी एक अच्छी बात है कि इंडस्ट्री ब्रॉड बेस होती है। आप जैसे और टैलेंटेड लोग इंडिया में अगर क्रिएट होते हैं, तो इंडस्ट्री और स्टेबलाइज होती है और ज्यादा सस्टेनेबल बन जाती है। सर, एक और बात बताने की रह गई सर, कि मैं जो भी ट्रेनिंग करता हूँ उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज में ज्यादा देता हूँ, थ्योरेटिकल नॉलेज कम होता है हमारे इसमें। एंड वी ट्रेन आवर स्टूडेंट्स थ्रू फन। तो हम जब भी ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा फन होता है, स्टोरी टेलिंग होती है, कुछ गेम्स होते हैं, अच्छे खासे नए नए गेम्स डेवलप करते हैं, और उन गेम्स के थ्रू हम उनको ट्रेन करते हैं। स्टोरी टेलिंग तो जैसे मैंने बोला कि स्टोरी टेलिंग तो होता ही है, प्लस हम उनको बहुत सारे एक्सपीरियंस सेंटर पे लेके जाते हैं। लाइक एन एग्जांपल, हैप्टिक है, ब्लूम है, हैफले है, इन सब के एक्सपीरियंस सेंटर पे हम उनको लेके जाते हैं। अभी रिसेंटली वी टेक देम टू द सलीचे आल्सो। तो इन सारे ब्रांड्स का मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है, आई वुड लाइक टू थैंक देम। हैटिक, हैफले, ब्लूम, सलीचे, उसके बाद में मैं एक्शन टेसा को थैंक्स करना चाहूंगा। एक्शन टेसा ने दे हैव हेल्प मी अलॉट। स्पेसवुड के किरीट सर को मैं थैंक यू देना चाहता हूँ, ही इज माय मेंटोर। तो उन्होंने मेरे को बहुत इंकरेज किया इस कोर्स को डेवलप करने के लिए।
थैंक करना चाहूंगा Pioneer विजय है, किरित तो पाइनियर है मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री की। Yes. I would like to thank Vijay Anand sir, who has helped me to develop this course. Vijay Anand sir is now category head in home center. तो उनका बहुत सपोर्ट मेरे को मिला, सलीचे का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला मेरे को, एंड हेटिक का तो नो डाउट, हेटिक ने बहुत ही टेक्निकल नॉलेज और जो भी टेक्निकल ड्राइंग्स बनते हैं इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलरली फॉर वार्डरोब्स, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया। तो इन सब के सपोर्ट से सर ये जो कोर्स है मॉड्यूलर फर्नीचर का कोर्स है, ये डेवलप हुआ है। एंड डेफिनेटली मेरी दिल की इच्छा है कि इस कोर्स को बाकी सिटीज में भी पहुंचाया जाए, ताकि वहां की भी जो बच्चे हैं वो इस मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकें। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जब हम मॉड्यूलर फर्नीचर की बात करते हैं या मॉड्यूलर किचन की बात करते हैं, तो जो किचन सेलर है या मैन्युफैक्चरर है, वो ऐसे बंदे को हायर करना चाहता है जो वेल ट्रेंड हो। ही डजंट वांट टू स्पेंड 3 months or 2 months in training them। तो वो एक जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री का, वो मैं सॉल्व करना चाहता हूं, कि ताकि मैं जब इंडस्ट्री को कोई बंदा नया ज्वाइन करे तो ही शुड बी वेल ट्रेन्ड। He should have all the product knowledge, he should have all the knowledge about installation, he should have all the knowledge about pros and cons of that particular product। तो उससे क्या होगा, हमारी इंडस्ट्री मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत फास्ट ग्रो कर पाएगी। आपने जो पेन पॉइंट, एक जो गैप, नीड गैप आपने जो आइडेंटिफाई करा है, वो बहुत ही जेन्युइन गैप है एंड बहुत बड़ा गैप है इंडस्ट्री के अंदर। एंड हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस मिशन में कामयाब होंगे। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू। थैंक यू सर। टू आवर शो। थैंक यू सर।